हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The communals divided. There is an important topic here. Communals divided here. The policy of divided and the rule was evaluated in the rise in the days of the East India Company and when the Britishers were established themselves and ruler of India. You have read how to company set on one India ruler against the other and ultimately it has become up disputable rulers. You have seen that in the later half of the 19th century, a nationalism started to growing. Now the British government found it is a prudent to ultimate there is a policy of divided and rule and drive as well as between to the Hindu and Muslims. The British had a look upon their Muslims with the disfavor of dispensations and once the revolt of 1857. But now they realize that in order to the contracted their growing nationalism, time had come to the appease their Muslims. The government seizes every opportunity to set the Indian against one another on the basis of the religions and creating hostility between them. Ultimately, it is the accordance with their policy separated to electorate for their Muslim were established. You have read about the formation of the Muslim leagues, which whatsoever there is a seed of colonialism. There is a Muslims leagues is a leagues. There is a which is solely there is a seed of communalism. You will remember that a league had to be formed on the encouragement of British officer. That is important here. There is a Muslim leagues had been formed on the encouragement of British official. The Communal Award of 1932 was the continuance of the policy because it is allowed to separate a electorate and reservation of the seat to be a depressed classes also. And separate electorate were a first demand by the Muslim in 1906 and introduced for them under the Morales Manto reform of 1907. There is a most important Morales Manto reformers here 1907 and this was done with the view of to be built up by Muslim colonialism as a counterpoise against Indian nationalism. Under the Montfort reforms in 1999, there is the extended of the Sikh. Under their Montfort reform 1999, there is a extended for the Sikh and European Anglo-Indians, Indian Christian, etc. Under the Act of 1935, 17 separated electorate were to the constituted and is related to the communal electorate were on the unmixed evil. And they hated the growth of national unity. The two national theory appeared in 1938 and was clearly communicated by the Jinnah in 1940. Once of the demand for the Pakistan was made, it was received direct and indirect encouragement of the British authorities. The immediate their case of emergence of demand for Pakistan was the refusal of Congress from the coalition ministries. After the election of 1937, the county seemed to be defeating to avoid the marches and the rain. And under the circumstances, the partitions was accepted as a necessary evil. And the only way of getting the right of British ruler and preventing the complete breakdown of law and order. सांप्रदायिकता एक ऐसी आग है जिसमें जिसने लगाया वो भी जलता है और जो नहीं लगाया वो भी जल जाता है। और कहते हैं ये सांप्रदायिकता एक ऐसा शब्द है जो किसी भी देश को ले डूबता है। लेकिन फिर भी कहते हैं जब अंग्रेज थे यहाँ पर उन्होंने सांप्रदायिकता का जो है बहुत बड़ी बीज बोई और भारत के दो भागों में बांट दिया। और कहते हैं पुराने समय के नेता इस बात को समझ गए थे
कि सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी आग होती है, लेकिन देखा जाए तो अंग्रेजों का ही आज के समय में राजनीतिक नेता अनुसरण कर रहे हैं। सांप्रदायिकता, दंगा फसाद आज आधुनिक युग में ये होना एक आम सी बात है। किसी भी बात के अंतर्गत ये बहुत ही आसानी से जो है फूट पड़ती है और इसमें आम जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं कमेंट करते हैं और इससे जो है बड़ी बड़ी मुसीबतों को बुलाते हैं और इससे उनको फ़ायदा होता है। आपने देखा होगा जब भी वोटिंग होती है तो ये लोग जो होते हैं वोटिंग कैसे बांटते हैं। हिंदू वोटिंग यहाँ अधिक है, मुस्लिम वोटिंग यहाँ अधिक है, ठीक है, जनजाति वोटिंग यहाँ पर अधिक मिलने वाला है, इसलिए जनजाति क्षेत्र से लोगों को खड़ा करो। तो ये सांप्रदायिकता का ही आग है और ये आग कभी ख़त्म नहीं होगी। कहते हैं उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे बात समझ गए थे कि सांप्रदायिकता एक ऐसी आग है जो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति को पैदा कर सकता है और हुआ भी। भारत का विभाजन कई हद तक सांप्रदायिकता का ही एक अंग था। हम उस समय के नेताओं की जो है अपने ऑफिसों में, अपने दफ्तरों में जो है तस्वीर लगाते हैं, लेकिन अनुसरण हम अंग्रेज़ों की बातों का करते हैं। तो ये कैसी, कहते हैं उनके प्रति भक्ति निष्ठा रही। उनके हम जन्मदिन मनाते हैं, बहुत से उत्सव मनाते हैं, लेकिन उनकी बातों का कभी अनुसरण नहीं करते कि उन्होंने सदैव भारत को एक करने के लिए वकालत की। लेकिन फिर भी आज के नेता लोग इस बात का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। बेशक जब उनके बर्थडे होगा, उनकी जो शहीदी दिवस होगा, उस पर वो लोग अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन बाद में देखा जाए तो जो है उनकी बातों के उलट कार्य कर रहे होते हैं। तो ये सही नहीं है। सांप्रदायिक विभाजन जो होती है बहुत बड़ी है और इसका अनुसरण सबसे पहले जो था अंग्रेज़ों ने किया था। उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया। कहते हैं आज के समय में आपको देखने को मिलता है, देखते हो हर क्षेत्र में बड़े बड़े शासन जो होती है हिल जाती है। तो यही बात है कि आपस में मंत्रियों में फूट डालो और अपना शासन को स्थापित कर लो। तो आज ये आम हो चुकी है। आज आधुनिक युग में देखिएगा तो कहते हैं सरकार किसी और की बनती है और 1 साल 2 साल के बाद सरकार किसी और की बन जाती है। तो वही है, मंत्रियों में फूट डालते हैं और अपनी शासन को कायम रखते हैं। तो ये अंग्रेज की नीति थी और वो आज जो है हमारे लोग जो है हमारे देश के मंत्री लोग सब अपना के अपना सिक्का को जमा रहे हैं। कहते हैं फूट डालो शासन करो नीति का आरंभ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन दिनों में किया था जब अंग्रेज अपने आप को भारत के शासक के रूप में स्थापित कर रहे थे। और अपने पढ़ा भी होगा कि कैसे कंपनियों ने एक शासक को दूसरे के खिलाफ किया। जैसे आज के समय एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ कर देती हैं, सेम कंडीशन है। कहते हैं समय बदल गया है लेकिन कंडीशन वही है, तरीका वही है। अंततः वह स्वतंत्र शासन बन गए क्योंकि आपस में वो लोग फूट डालते थे और स्वयं ही वो शासक बन गए। आपने देखा कि 19वीं शताब्दी के समाप्ति के पश्चात ये सभी राष्ट्रीय उत्पन्न होने लगी थी और अब ब्रिटिश सरकार ने पाया कि फूट डालो और शासन करो की नीति को बढ़ाकर हिंदू और मुस्लिम के बीच जो देर पैदा करना ही बुद्धिमानी है। अब देखिए उस समय अंग्रेज ने इस बात को अनुसरण किया कि अगर भारत में राज करना है तो हिंदू मुस्लिम के बीच दोष पैदा करना ही बुद्धिमानी है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो हिंदू को कह रहे थे कि ये हिंदू राष्ट्र है और मुस्लिम को कह रहे थे ये मुस्लिम राष्ट्र है। अब देखिए वो दोनों के मन में ये बात के उन्होंने बीज बो दिया और इसके कारण क्या हुआ, हिंदू अपने देश राष्ट्र को मांग रहा था, मुसलमान अपने राष्ट्र को मांग रहा था। और अंग्रेज को ये बात पता था कि ऐसे करने से ये आपस में लड़ेंगे और इनकी एकता टूटेगी और हम और भी टाइम तक यहाँ पर रह सकते हैं। आज भी देखिए यही बात का अनुसरण हो रहा है। हमारे बड़े बड़े लोग जो हैं भारत को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे देश में कई धर्म के लोग रह रहे हैं। इसलिए भारत को भारत रहने दें, हिंदुस्तान रहने दें, लेकिन इसको एक धर्म के रूप में इसको ना देखें। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, बड़े प्यार से रह रहे हैं, सभी अपना जो है अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो हिंदुत्व बना के क्या मिलेगा? भारत में देखिए हर जाति के लोग पूरे अमाउंट में हैं और रह रहे हैं, खुशी से हैं। तो कहते हैं ऐसा फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो आगे उनको ही
कहते हैं जैसे बीज बोओगे वैसे ही पाओगे। तो ये बात शायद अंग्रेज नहीं जानते थे। उन्होंने बेशकली इस बुद्धिमानी यही समझी कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो है बैर की भावना उत्पन्न करना है, तो उनको जो है हिंदू मुस्लिम बनाना है। अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह से ही मुस्लिम अप्रिय और संदेशस्पर्श होने के कारण अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकने से मुसलमान खुश करने का समय आ गया है। यानी मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने राष्ट्रवाद का सहारा लिया। सरकार ने उन सभी अफसरों पर अपने अधिकार जो है अफसरों का अधिकार कर लिया जिन्हें भारतीय धर्म के आधार पर एक दूसरे को समक्ष होते थे, और उन लोगों के बीच उन्होंने शत्रुता उत्पन्न कर दी थी, क्योंकि आपस में शत्रुता उत्पन्न करना ही उनकी बुद्धिमत्ता थी। अंततः इसी नीति के कारण मुसलमानों का अलग चुनाव क्षेत्र स्थापित हुआ, क्योंकि पहले एक चुनाव स्थल था। अब देखिए, अब उनके मन में जो है मुस्लिमित्व की जो भावना थी वो डाल दिया उन्होंने, और इसके कारण क्या हुआ, मुसलमानों ने अपनी अलग चुनाव क्षेत्र स्थगित कर लिया। अपने मुस्लिम लीग के निर्माण के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे। आपको याद होगा कि ब्रिटिश अधिकारियों के बढ़ावे के कारण ही लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं होनी थी। लेकिन अंग्रेज ये बात जानते थे कि अगर मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी तो जैसे कांग्रेस लीग की स्थापना हुई थी, कांग्रेस नेशनल पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार नेशनल जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, तो ये दोनों में टक्करपन होगी, यानी आपस में टकराएंगे और आपस में ही लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने ये बीज बो दिया कि अगर हिंदू का एक राष्ट्र हो सकता है, एक पार्टी हो सकती है, तो एक मुस्लिम का भी होना चाहिए, क्योंकि यहीं से जो है उन्होंने ये जो है बीज बोने का सूत्रपात कर दिया। और तब से जो है फूट की ऐसी लहर उठी जो देखा जाए तो 1947 में जाके भी शांत नहीं हुई और भारत को 2 भागों में बांट दिया। तो यही दर्द आज के समय में भी बड़े बड़े लोग, नेता लोग, बड़े बड़े साधु संत सब भारत को देने के लिए अग्रसर हैं, जो सही नहीं है। कहते हैं इसमें आम व्यक्तियों की ही जो है बहुत हानि होगी, सरकार की हानि कभी नहीं होती है। सरकार की हानि कहाँ से होगी? सरकार ने क्या मेहनत करके उसको लगाई है? कभी नहीं लगाती। तो आम व्यक्तियों से पैसे वसूल के बनाती है, तो आम जनता की ही जाती है। कोई भी अगर सांप्रदायिक दंगा के कारण बर्बाद होता है तो आम जनता का ही जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर रेल को आप नुकसान पहुंचाते हो तो सरकार अपनी जेब से तो पैसा लगाएगी नहीं। कहते हैं रेलवे में किराया बढ़ा देगी, यातायात के साधनों में जो है किराया बढ़ा देगी, और जो आपने नुकसान किया है उसका भरपाई वो कर लेगी। तो कहते हैं दंगा फसाद में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सिर्फ अपना जो है शांति में ढंग से जो है सरकार को चुनिए, और जब इलेक्शन होता है तो उस समय बताइए कि हम उनको चुनेंगे जो हमारे लिए हैं, हम उनको नहीं चुनेंगे जो सांप्रदायिकता की आग लगाते हैं। 1932 के मैकलॉ अवार्ड इसी नीति की एक पहल थी, क्योंकि इसने ही समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण और अलग चुनाव क्षेत्र की अनुमति दे दी थी। अब देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आरक्षण करने की बात रखी गई वो बहुत ही सही नहीं थी, और आज के समय में तो बिल्कुल ही सही नहीं है। क्योंकि आरक्षण देखिए दोस्तों, आज हर एक बच्चा मेहनत करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, या जनजाति किस्म का हो, किसी भी किस्म के व्यक्ति हो, सब बच्चे मेहनत करते हैं, तो सबका जो है वो किसी पद के लिए सामान्य अधिकार है। लेकिन आज देखा जाए तो आरक्षण के कारण जो है कुछ लोग फ़ायदा उठा के आगे बढ़ जाते हैं, और जो व्यक्ति काफ़ी मेहनत कर देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसमें सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि आज के समय आधुनिक हो गया है, आज सभी लोग समझदार हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, तो ये जितने भी कोटे बनाए गए हैं वो नहीं होना चाहिए हमारे आज के समय में। इससे बच्चों की मनोबल घटता है। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे लिए तो ये सीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, हमारा परसेंटेज आए चाहे ना आए, लेकिन हमारी सिलेक्शन होगी नहीं। कई बच्चे जो होते हैं अपने हताश हो जाते हैं। सरकार को इसमें सोचने की आवश्यकता है कि आरक्षण आज के समय में एक बहुत बड़ी चिंगारी है, जो लोगों में आगे समय में आके भड़का भी सकती है। तो ये सोचने वाली बात है कि आरक्षण जो है आज के समय में ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम आधुनिक युग में हैं। सभी व्यक्तियों को पूरा मौका मिलता है, सभी को हर तरह के एजुकेशन मिलते हैं। जो बच्चा मेहनत करेगा, जो आगे बढ़ना चाहेगा वो बढ़ेगा। लेकिन आरक्षण के रूप में उनके लिए सीटों को आरक्षित कर देना सही नहीं है, क्योंकि आज कोई वर्ण नहीं है, ना कोई आज क्षत्रिय है, ना कोई आज ब्राह्मण है, ना कोई वैश्या है, ना कोई आज शूद्र है।
आज सब सामान्य है, आज हर व्यक्ति हर कार्य करने को जिज्ञासित है, तो इसलिए आरक्षित होना नहीं चाहिए। और यही बात जो है 1932 में अंग्रेजों ने अनुसरण कराया और अलग चुनाव क्षेत्र की अनुमति दे दी गई। अलग चुनाव क्षेत्र की पहली बार मांग 1906 में मुस्लिम लीग ने किया था। देखिए, पहली बार अलग चुनाव करवाने की जो है मुस्लिम लीग ने किया, क्योंकि पहले ही अंग्रेजों ने इनमें फूट डाल दिया था इनकी जो एसोसिएशन बना के। और 1907 को मार्लो मिंटो सुधार में इसी लागू भी किया गया और इसे भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ाने के ध्यान में रखकर बनाया गया था। मोटाफोर्ड सुधार 1919 के तहत उसे सिख, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन आदि का भी बढ़ावा गया। और 1935 के अधिनियम के अधीन 17 अलग चुनाव क्षेत्र भी बनाए गए। देखिए, 17 अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए। 2 राष्ट्र सिद्धांत 1938 में लाया, जिन्हें जिन्ना ने 1940 में खुलकर इसका समर्थन किया। अब जिन्ना क्यों नहीं समर्थन करेंगे, क्योंकि उनको तो एक नया राष्ट्र बनने वाला था, इसलिए जिन्ना ने 1940 में खुलकर समर्थन किया। जब पाकिस्तान की मांग की गई तो अंग्रेज हुकूमत ने सीधे और प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रोत्साहित किया। यानी अंग्रेजों को तो पता था कि इनको अगर जाते जाते इनमें फूट डालना ही उनके लिए सही रहेगा, और अंग्रेजों ने यही किया, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जो है इसका प्रोत्साहित किया पाकिस्तान की मांग को। और पाकिस्तान की मांग को प्रकट होने का तत्कालीन कारण था 1937 के चुनाव के बाद अंग्रेजों की मिली जुली सरकार बनाने से इनकार था, क्योंकि उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू मिली जुली सरकार बनाने के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं थी और देश अराजकता और बर्बाद होने के कगार पर था। तो इन कारण से जो है वहाँ पर सांप्रदायिकता की आग लगाई गई, जो आपको पता है 1947 की जो दर्द था वो झेलना पड़ा। तो मैं त्रिपाण स्टडी सेंटर यही बात बोलते हैं कि सदैव हमें उचित करना चाहिए, जो देश कल्याण की बात हो उसको करना चाहिए, कभी भी सांप्रदायिकता जैसी आग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप लगा दोगे लेकिन ना जाने कितने बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, कितने जो है माँ का कोख उजड़ जाता है और कितने विधवाएं हो जाती है, जो सही नहीं है। सांप्रदायिकता के अंतर्गत कोई भी विचारधारा है तो उसको पनपने ना दे, क्योंकि ये देश के हित के लिए कभी भी सही नहीं है। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी और बहुत ज़रूरी थी। आप लोगों को भी कोई सांप्रदायिकता के अंतर्गत बातें कहता है या कोई मैसेज आता है, कुछ भी होता है, तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हो, देश के भविष्य हो। अगर आप इनके चक्रों में पड़ जाओगे तो जीवन आपका भी नष्ट हो जाएगा। आज के समय में देखिए, बहुत से लोग जो हैं हर तरह के हरकंडे अपना रहे हैं भारत के नौजवानों को बरगलाने के लिए, लेकिन आप समझदार हो, आप वही करो जो देश कल्याण के लिए हो, आपके घर के कल्याण के लिए हो, आपके माता पिता के लिए महत्वपूर्ण हो। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का अर्थ यही होता है कि आप एक समझदार बनो, जागरूक नागरिक बनो, यही महत्वपूर्ण बात होता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और भी बात है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, तभी ये विचारधारा दूसरे बच्चों तक भी पहुँचेगा और वो भी देश कल्याण में और अपने जीवन को जो है प्रोग्रेस करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ेंगे नहीं, अच्छा बनेंगे नहीं, तो वो ज़िंदगी के इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे कि कौन उनको गलत रास्ता दिखा रहा है और कौन उनको सही रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि कहते हैं, अगर मान लीजिए जानवर पढ़े लिखे नहीं होते, उसको जैसे इशारा करते हो वैसा वो करता है, लेकिन आप इंसान हो, आप पढ़े लिखे समझदार बन सकते हो, तो एनालाइज भी करना सीख सकते हो कि भाई कौन चीज़ गलत है, कौन चीज़ सही है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। और आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो जो है प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, ठीक है। उसको आप सिलेबस के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत या क्लास के अंतर्गत देख सकते हो, समझ सकते हो।